بھائی ہائے کیا ہائے اچھا ہائے شعر ہے، کیا اچھا شعر ہے. پھر سے جلد مارے جائیں گے. پھر سے پڑھیے گا، پھر سے پڑھیے گا. بچھڑتے وقت کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے ہم جلد مارے جائیں گے. کیا کہنے. شہباز بھائی کوئی تازہ کلام اپنا اگر لکھا ہو جی میں تازہ نے تازہ کلام دو سنواتا ہوں اپنی نظر. میں نے ایک غیر مطبوعہ غزل بھی یہاں سنائی ہے آتے ہی، ہوں جو ابھی تک کہیں لگائی نہیں ہے، اور جو کل میں نے پوسٹ کی ہے وہ بھی سنائے ہیں. بلکہ آج ایک دو شعر ہوئے ہیں بالکل آج ہی شام کو ہی میں وہ سناتا ہوں. جی جی بسم اللہ. میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل، ہوں میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل، مجھ کو احساس کمتری سے نکال. ہائے ہائے. میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل، مجھ کو احساس کمتری سے نکال، یا مجھے اپنی زندگی میں رکھ، یا مجھے اپنی زندگی سے نکال. واہ بھائی کیا اچھا ہے. اچھا جی جی غیر مطبوعہ کی فرمائش آپ نے شہباز تو میں نے آتے ہی سنائے تھے چار اشعار. شہباز بھائی یہ کب سوچا تھا آپ نے ویسے یہ جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاعری ایسی بے وقوفی ہے ہاں جو سمجھدار جو لوگ سمجھدار کرتے لوگ کرتے ہیں. جی آپ. ہاں اس کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیسی سوچ تھی. یار یہ ایسی سوچ تھی کہ شاعری ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو زندگی میں کچھ دے، ہوں آپ کو جیتے جی کچھ دے، آپ ہوں کے بال بچوں کو کچھ دے، ہوں یا آپ کے گھرانے کو کچھ دے. ٹھیک ہے، یہ چکا چوند ہے، یہ مطلب اس سے جتنا بھی اس کا اپ پٹ ہے وہ میٹیریلسٹک نہیں ہے. ہوں تو اس طرح یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، اسی لیے اس کو سمجھدار لوگ چوز کرتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو فائدہ نہیں دیتی تو وہ نکل میں وہ کرنا بے وقوفی ہے کہ لوگ اپنے ہوں شاعروں کو دیکھا ہے میں نے، آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا کہ فیملی ان کی ان سے خوش نہیں ہوتی، وہ بے روزگار ہی رہ جاتے ہیں، وہ غربت میں رہ جاتے ہیں، وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں، وہ ہوں عشق میں خود کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس تناظر میں اس کو بے وقوفی بھی کہا ہے. جی آپ سلامت رہیں. جی اور کوئی فرمائش؟ مائک نمبر 12 بردر اپنا مائک میوٹ رکھیے، آپ کے مائک سے آواز ڈبل ہوتی ہے، ان کو ریموو کر دیں. بردر آپ کس سے نے فرمائش آئی ہینڈ ہوئی ہے فری نہیں کون؟ لگائی ہوئی، آپ ٹائپ کر دیں، آپ کی فرمائش پوری ہو جائے گی. آپ ٹائپ کر دیں. زندگی جی ٹائپ کریں. کچھ دن ایسے دو ہم کو، ہم اسے چاہیں اور وہ ہم. یہی سنا میں سنا زندگی کچھ دن ایسے دو ہم کو، ہائے ہائے. ہم اسے چاہیں اور وہ ہم کو، وہ ہم کو. نظر آتا نہیں ہمیں کچھ بھی، ہاں ہاں. نظر آتے رہا کرو ہم کو. نظر آتے ہائے رہا ہائے کرو ہم کو. ہائے واہ ہائے. واہ. کیا بہت ہی اچھا. ہے، کیا ہی ہے. نظر آتا نہیں ہمیں کچھ بھی، نظر آتے رہا کرو ہم کو، ہم ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں. ہائے ہائے. ہم ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں، تم ابھی بھی پسند ہو ہم کو. تم ابھی بھی کیا ہائے بات، ہائے بھی کیا ہائے. بات، پسند کیا ہو ہم بات. یار، بہت بڑا کیا ہی ہے. سلام. ہم ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم ابھی بھی پسند ہو ہم کو، ایک ہی ہاتھ سے بنایا گیا، آپ کو دن کو رات کو ہم کو. کیا کہنے بھائی، واہ. اور یہ شاعروں کے لیے شعر ہے کہ پیار میں شکر غربہ جائز ہے، پیار میں شکر غربہ جائز ہے، جو تیرا دل کہے کہو ہم کو. جو واہ تیرا واہ واہ. دل کہے وہ ہم کو. بہت اچھا. اور
यार ये अच्छा शेर याद दिलाया, ये तो मैंने गजल से भी निकाला हुआ था। अच्छा याद दिला दिया कि हम तो वैसे भी तुम पे मरते हैं और ऐसे भी तो जियो हम। हाय बहुत अच्छा। बहुत शुभाष भाई माइक नंबर 1 सवाल करना चाहते हैं। जी हादी, सवाल कीजिए, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा माइक करीब करें हादी। हादी आपकी आवाज परफेक्ट नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक करीब जी जी, आप ठीक है आवाज मेरी? जी अभी ठीक। जी अब ठीक जी है। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि एक पहला ये सवाल है कि इस सदी का आपकी नज़र में कौन सा बेहतरीन शायर है? जिंदों और में दूसरा, जी जी, इस सदी का, ठीक है। और जी जी, इसके साथ और भी कुछ जी पूछना जी, चाह रहे हैं या दूसरा बस एक ही जी सवाल जी, है? दूसरा और सवाल दूसरा भी ये आप ऐड सवाल है कर। कि क्या आप, जी जी, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो आजकल के सोशल मीडिया है, आप नहीं समझते ये जो शायर हैं, ट्विटर है, ये ऐप है या कोई और ऐप है, क्या इसने शायरी में हुल्लड़बाजी नहीं मचा दी? मेरे मेरे ये दो सवाल हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पहले सवाल का तो यार यही जवाब है कि उसमें एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदों में मैं 3-4 नाम ज़रूर ले लेता हूँ। इनमें से कोई एक हो सकता है इस चल रही सदी का एक बड़ा शायर, जिनमें फरहत एहसास शायर हैं इंडिया से, तो कन्फ्यूज़न मत डालिएगा, फरहत अब्बास या और हैं। मैं नाम ले रहा हूँ फरहत एहसास, भारत के हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं ज़फ़र इकबाल, जो लाहौर से हैं, आफ्ताब इकबाल के बाप भी हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अख्तर उस्मान, जो इस्लामाबाद से हैं। और चौथे नंबर पे दो लोग हैं, दोनों को चौथे पे रखा जा सकता है, कि जिनमें अब्बास आबिद साहब हैं एक नाम, और दूसरा नाम है मंसूर आफाक। ये 5 नाम आप रख सकते हैं कि अच्छा इनमें से ही कोई एक हो सकता है। ओके। अच्छा, जिनका आपने नाम लिया है 5-6 बंदों का, इनका कोई फेवरेट शेर 2-4 अगर आपको कोई जो आपको बहुत ज़ाती तौर पे पसंद हो, 1-2 अशार अगर हो जाए जो आपको पसंद हो, और किसके हैं वो भी अब बताइए। जैसे कि ज़फ़र इकबाल, मेरे पसंदीदा शायर अगर कोई सवाल पूछता तो मैं सिर्फ एक ही नाम लेता और वो है ज़फ़र इकबाल। जी, उनके कोई 2 अशार सुना दें। मैं सुना देता हूँ। कहते हैं कि वैसे तो उनका मशहूर एक शेर आपने सुन रखा होगा कि खुद को तरतीब दिया आखिर कार सरे नौ, खुद को तरतीब दिया आखिर कार सरे नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। हाँ और दादे सितम न दे के सितमगर भी खुश नहीं, हाय 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 हाय। दादे सितम न दे के सितमगर भी खुश नहीं, ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, कोई घर भी कोई इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए ज़फ़र, ज़फ़र, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। अरे वाह, हमने बुला दिया अरे तो इस पर भी कुछ नहीं। भाई क्या ही है, क्या ही अच्छा है बहुत भाई अच्छा, जी। बहुत और यार अच्छा। इजाज़त हो तो मैं उनका चौथा शेर भी एक सुना दूँ, मुझे बहुत जी पसंद जी है। जी जी। किस तरह से, किस तरह से? कहते हैं यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, हाय 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 हाय, तो हम ना मिले और हमको तू ना मिला। हमको तू ना भाई क्या मिला। शेर है। वाह वाह, बहुत और वो दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वो भी पूछ रहे हैं। हाँ यार, उस पर मैंने कुछ दिन पहले मजमून भी एक लिखा था, तो उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने वाकई हुल्लड़बाजी तो बहुत मचा दिया है। ये लेकिन दो तरह के लोग हैं ना शायरी सुनने वाले, एक वो हैं जो शेर फहम हैं, जो शेर को जानते हैं, दूसरे वो हैं जिनसे शेर
रिलेट कर जाता है और वो उस पर ताने मारना शुरू हो जाते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो गई है तो वो मेरे शेर पे चीख उठेंगे कि तुम्हारी शादी ने नींदें हराम कर दी, चाहे मैं इसको बेवजन सुना दूं, चाहे मैंने किसी का चोरी किया हुआ हो, चाहे मैंने उसमें घपला किया हुआ हो, जिस बंदे से रिलेट कर गया है ना उसने समझना है शहबाज मैं तेरी सदी का बड़ा शायर है, ठीक है, रिलेट कर रहा है उससे। एक है अवाम और एक है कारी। कारी शेर को समझता है, शेर को जानता है, लेकिन जो आम अवाम है वो शेर को बिल्कुल नहीं समझती, ठीक है, यानी उनकी बारीकियों को, उनके मुहासिन को, उनके मायूब को, कि इसकी खासियत क्या है और इसमें ऐप क्या है, वो आम बंदा नहीं जान सकता, ठीक है। तो आम बंदे ने सोशल मीडिया की वजह से ऐसे ऐसे शायरों को बहुत ऊपर ऊंचा कर दिया है, ऐसे ऐसे शायरों को कि जिनको शायरी का ही नहीं पता। मिसाल के तौर पे रिसाइटर्स को ले लेते हैं आप, कि उनमें एक मैं बेहतरीन मिसाल लेता हूँ शब्बर अब्बास या शब्बर हैदर है, ये क्या है, ये शब्बर है उसका नाम, तो वो रिसाइटर हैं, वो हम जैसे शायरों की शायरी करते रहते हैं। उसको इतना ज़्यादा फेम मिल गया उस शायरी की वजह से कि वो बाकायदा मुशायरों में बुलाया जाता है कुछ अर्सा पहले तक, कि मैं मुशायरे में था, उसमें वो एज ए पोएट आया हुआ था वहाँ, शब्बर जाफरी। अब सोचें वो बंदा शायर नहीं है, उसको शायरी का कख नहीं पता, वो अपना एक भी शेर नहीं लिख सकता, लेकिन उस फेम की वजह से वो भी शायर बन गया, जिसको शायर की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। इसी तरह जो थोड़ा सा सीख लेता है शायरी के बारे में और वो लिख रहा होता है, तो आम बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि यार इसमें कोई ऐड है या नहीं है, या इसने ख्याल चोरी किया हुआ है, या ये किसी और का शेर इसने मारा हुआ है, तो आम बंदे को नहीं समझ आती। तो उस आम बंदे की राय की वजह से शायरी पर जो खालिस राय होती है उससे शायर महरूम हो गए। ये कुछ दिन पहले पोस्ट मिला हमारे से बड़ा सा मजमून लिखा और इसका बहुत नुकसान हो रहा है शायरी, सच है। बिल्कुल।